Hello students, welcome to the exam counselor. My name is Ikra Farooq and today I'm here with the MCQs of lecture 1 of unit 1, okay? एक्चुअली कल हमने जो है यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ा था, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग MCQs करेंगे, ओके? तो हम आपको लेक्चर्स के साथ साथ MCQs भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपको प्रैक्टिस हो और आप एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहे, ठीक है? तो हमारा जो द एग्ज़ाम काउंसलर ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे भी हमने MCQ सीरीज़ को या कोर्सेज़ को लॉन्च किया हुआ है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप हमें ज्वाइन करें एंड यू विल स्टे अपडेटेड विद अस, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड with our MCQs. So the question number 1 says the word society is derived from a dash word. वर्ड सोसाइटी जो है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डैश वर्ड विच मीन्स सोशियस तो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? यस, ट्राई टू आंसर. Is it from Greek word? Is it from Latin word? Is it from Roman word? Or is it from French word? Yes, the answer is it is a Latin word. It is derived from a Latin word. Okay? हाँ जी. So the question number 2 says the book society is authored by. ओके, सो फर्स्ट थिंग एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट कि हो सकता है कुछ फैक्ट्स हमारे लेक्चर्स में ना आए, जैसे कि बुक्स है, ऑथर्स है, ऐसा कुछ, तो उन चीज़ों को मैं MCQs में कवर कर लूँगी, ओके? सो बी कंसिस्टेंट विद MCQs ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जो भी पॉइंट्स बीच में आते हैं आप उनको साथ साथ नोट डाउन करते रहा करें, ठीक है? ओके, सो बुक सोसाइटी इज ऑथर्ड बाय, जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर. सो आवर ऑप्शंस आर Talcott Parson, Saint Simon, MacIver and Page, Herbert and Spencer. So our answer is MacIver and Page. Okay? Yes, note it down. So our question number 3 says, which of the following is not a characteristic of society? हम characteristics of society पढ़ चुके हैं, हाँ जी. So just try to recall. So our first option says the range of social relationships. द रेंज ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. तो हमें पता है कि एक सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक होता है दैट इट्स मेड अप ऑफ रिलेशंस, इंटर रिलेशंस. तो रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, सो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक, इट इज़. द थर्ड वन सेज सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस. हाँ जी, हमें पता है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कोऑपरेशन भी होती है, सो इट इज़ अ राइट ऑप्शन. Then the fourth one says it involves division of labor. Yes, it involves division of labor क्योंकि सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज इम्पॉर्टेंट. Then the second one says society is a static concept. It says society is a static concept. No, we know that society is a dynamic concept. It is a dynamic concept. So option 2 is the correct option because it is not a characteristic of society. Let's move towards next question. So the question number 4 says, who is known as the father of sociology? Who is known as the father of sociology? Is it Adam Smith? Is it Auguste Comte? Is it Machiavelli? Or is it none of these? You should definitely know this because this is an important question. Yes, try to recall. Who is known as the father of sociology? Yes, it's Auguste Comte. हाँ जी. Okay. Let us move towards next question. Which theory gives the correct explanation of origin of society? कौन सी ऐसी theory है जो correct explanation देती है हमें origin of society के बारे में? हम सारी theories पढ़ चुके हैं. Let me explain it in crux. So divine theory. What does divine theory say? Divine theory says that society is the creation of God. So society is the creation of God. तो हमें पता है ये correct explanation नहीं है एक society की. Then the force theory. What does the force theory say? Force theory says that
that society is made by some superior men who overcame their fellow weaker men. तो एक्चुअली ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है किस चीज़ को? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी. तो हमें पता है कि ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देन कम्स द एवोल्यूशनरी थ्योरी. एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती है कि सोसाइटी इज मेड ग्रेजुअली, कि एक सोसाइटी जो है वो ग्रेजुअली बनती है, वो एकदम से नहीं बनती, या उसे कोई ऐसे एकदम से नहीं बना सकता. सोसाइटी जो है वो एक ग्रेजुअल ग्रोथ है, एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक सोसाइटी बनती है, फिर और डेवलपमेंट होती है, वो और डेवलप हो जाती है. तो ऐसे करके सोसाइटीज़ डेवलप होती है. और हमें पता है दैट इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आवर करेक्ट आंसर इज एवोल्यूशनरी थ्योरी. ओके, यस. सो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ब्लड रिलेशन थ्योरी. तो हमारी जो ब्लड रिलेशन थ्योरी है वो क्या बोलती थी? हमारी ब्लड रिलेशन थ्योरी बोलती थी कि एक सोसाइटी जो है वो कैसे बनी, वो पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल रिलेशन से बनी. कि पहले कुछ फैमिलीज़ थी आपस में जुड़ गई, फिर और फैमिलीज़ जुड़ी, और फैमिलीज़ जुड़ी. ऐसे कर कर के क्या हुआ, जब और फैमिलीज़ जुड़ी आपस में, तो ऐसे कर कर के सोसाइटी बन गई. तो उनमें कोई एल्डर मैन था जिसने उनको प्रोटेक्शन दी, उनके ऊपर एक अथॉरिटी दिखाई, ऐसे करके सोसाइटी बन गई. बट हमें पता है ये भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आवर राइट ऑप्शन इज एवोल्यूशनरी थ्योरी. ओके, हाँ जी. लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी. तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट थ्योरी जो है वो क्या बोलती है. जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इट सेज सोसाइटी इज मेड अप बाय मैन. नो, इट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. हमें पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलती है कि क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल्स ने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, और एग्रीमेंट्स करके उन्होंने खुद से आर्टिफिशियली एक सोसाइटी बनाई. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स थ्योरी. उसके बाद मेड बाय गॉड, हमें पता है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन थ्योरी. Then survival of the fittest. Yes, survival of the fittest is the concept of force theory. So it is the right answer. Okay. हाँ जी. Okay, let us move towards question number 7. So question number 7 says the book Society, Culture and Personality is written by. It's also an important book which you have to remember. The book Society, Culture and Personality. Okay. लेट मी डू वन थिंग. एक्चुअली आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील टू आंसर द क्वेश्चन फॉर यू पीपल, बट अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा. यू विल रिमेंबर द आंसर ईजिली, बिकॉज बुक्स और ऑथर्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप इस चीज़ को गूगल करेंगे, खुद से नोट डाउन करेंगे, तो आपको याद रहेगा. ओके, जस्ट डू दिस वन थिंग. ओके, यस, जस्ट गूगल द आंसर. इफ़ you already know the answer, then comment it down below. And if you don't, then Google it and comment it down in the comment box. Yes. Okay. I hope you will do it. Let's move towards question number 8. Who said man is a social animal? Who said man is a social animal? Very important. Who said it? Is it Plato? Is it Aristotle? Is it Socrates? Or is it Saint Simon? Yes. Yes, we know the answer is Aristotle. Yes. Aristotle said that man is a social animal. Move towards question number 9. Proximity to nature is a characteristic feature of. Proximity to nature. Nature के साथ किस सोसाइटी की proximity ज़्यादा है इनमें से? Is it agrarian? Is it urban? Is it industrial or post industrial? तो अगर हम देखें post industrial, industrial, no, not at all. क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का तो नेचर के साथ है ही नहीं कुछ, पोस्ट इंडस्ट्रियल का भी नहीं है, अर्बन सोसाइटी का भी एज सच नहीं है. तो अगर हम देखिए, यस, एग्रेरियन सोसाइटी का प्रॉक्सिमिटी नेचर के साथ है. सो प्रॉक्सिमिटी टू नेचर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज़ अ फीचर ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी. यस. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. Which sociological concept refers to the process through which individuals learn and internalize the values and norms of society? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है किस बारे में कि इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं एक सोसाइटी के वैल्यूज़ को
और एक सोसाइटी के नॉर्म्स को. सो विच कॉन्सेप्ट? Is it socialization? Is it social mobility? Is it social stratification? Or is it all of these? सोशल मोबिलिटी ये किसके रिलेटेड बात करता है? सोशल मोबिलिटी रिलेट करता है हमारे किसको? मोबिलिटी को, मूवमेंट को. जो सोशल मूवमेंट्स होती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये उसके बारे में बात करता है. तो नो, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द इंटरनलाइजिंग वैल्यूज एंड नॉर्म्स. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, no, it does not say about this. Then which is the right answer? Yes, socialization. Socialization is the right answer. Okay. तो हमने कल के लेक्चर के रिलेटेड 10 MCQs कर लिए हैं. आप MCQs को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? ओके. सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कुछ भी सजेशंस हो तो डू कमेंट. ऑल द कमेंट्स आर वेलकम्ड. ओके. ओके, थैंक यू सो मच.